Yeah. See, in last lecture, you were asking me about what are the important formula which are useful for finding derivative of a given function, right? In that, I have shared you formula sheet of trigonometry and inverse trigonometric function. Okay. So if you need all the formulas, then I will send you new PDF. Sir, please add me in the group. Okay, I will do. Okay. So I think yes, good afternoon, everyone. In last lecture, we have discussed topic differentiation. Today, we are discussing next topic, that is application of derivatives. So what are the applications of derivative? And what are the application of derivatives for your syllabus? That first I will explain. In your syllabus for MST CET, first thing is that how to find what is the slope of tangent and slope of normal. Then equation of tangent, equation of normal. Then derivative as a rate of measure. After that, we'll see some examples based on approximation. How to find the approximate value of tan 36 degree. Okay. Then after that, we'll see Rolle's theorem, then Lagrange's mean value theorem. After that, what is increasing function, what is the decreasing function? And last thing is that maxima and minima of a given function. Okay, so all these things we are discussing in this topic, and this topic is also high weightage for your MST CET. So first thing, one by one, we are going to discuss. The first is slope. You know what is meant by slope of a given curve. Suppose that this is a given curve, y is equals to f of x, and if you want to find the slope at a point x is equals to a, then this tangent, slope of tangent, you can find out dy by dx is the slope of tangent. And what will be the slope of normal? You know that tangent and normal, they are perpendicular, so mt and into mn is equals to -1 perpendicular. So slope of normal is -1 upon slope of tangent is equals to -1 upon dy by dx. Now what is equation of normal? Equation of normal and equation of tangent. You know that if you know the slope and point, then by using slope point form, equation of tangent is y minus y1 is equals to m slope of tangent into x minus x1. Similarly, equation of normal is equals to y minus y1 is equals to mn, where mn is -1 upon dy by dx into x minus x1. Okay. So based upon this, few questions are there which were asked in previous year's MST CET question paper. The first, what is equation? The equation of normal to the curve 3x square plus 4x minus 5 at a given point. इधर point कौन सा था? A and f of a, right? इधर point कौन सा दिया है? 1,2 means suppose that this is a curve. Where to find equation of this normal? ये normal होगी, right? First you will get slope of tangent. So y is given 3x square plus 4x minus 5. So dy by dx, this is slope of tangent. It is equals to 6x plus 4. And what is slope of normal then? -1 upon dy by dx. Okay, but at given point is given 1,2. So here 6 into 1 plus 4. So 10 will be the slope of tangent, and slope of normal will be -1 by 10.
Now equation of normal. X minus x1 is equals to slope of normal into y minus y1 is equals to mn into x minus x1. So this is minus 1 by 10. What is x here? X is given x and x1 is 1 and y minus y1 is given 2. So if we cross multiply, then it will be 10y minus 20 is equals to minus x plus 1. 10y minus 20. So it will be x plus 10y minus 21 is equals to 0. Okay. So equation of curve was given. From this, if I'll find dy by dx, then what I'll get? Slope of tangent. Slope of tangent at given point 1, 2 is 10. I know that slope of tangent and slope of normal relation mn is equals to minus 1 upon slope of tangent. So minus 1 upon dy by dx, that is minus 1 upon 10. Equation of normal, if I want to find, then y minus y1 is equals to mn into x minus x1. If I'll put the values, then I'll get x plus 10y minus 21 is equals to 0. So what was the option? B. Okay. Now you solve this second one. Yes, second, few students they have written answer A. Okay, EY plus 4. Okay, try to solve this second question. I'll give you 2 minutes for solving this question. See here they have asked you find the equation of tangent. Okay, you have to find slope of tangent and put the value. In first question it was asked normal, equation of normal. So A is the answer, maximum student they have written. So let's see. Now for this question, what is given equation of curve y is equals to 4x into e raised to x. So dy by dx will be the slope of tangent. So this is first function, this is second function. First function as it is derivative of second, e raised to x derivative is e raised to x, plus second as it is derivative of first. So 4x if we'll take, okay, function is correct, 4x into e raised to x, 4x e raised to x. First as it is derivative of second, plus second as it is derivative of first. So it will be 4 e raised to x plus 4 e raised to x. If we'll take 4 e raised to x as a common, then x plus 1, right? So this is dy by dx. And what is the point given? Point was given minus 1 and minus 4 upon e.
So dy by dx at -1 comma -4 by e is equals to 4e raised to x is -1 plus 1, it will be 0. Let's see. Okay. So why? Okay, yes. Yeah, slope is 0, right? So slope of tangent is equals to 0. Now equation of tangent. Y minus y1 is equals to slope of tangent into x minus x1. So you put the values, you will get the answer. And the answer is A. So for 93, now 93, which one is the answer? But here in textbook it is given D. In book, the answer is given D. And while solving, they have given wrong value, -1, and instead of -4 by E, they have taken 4 by E. That's why their answer is coming D. So there is, I think there is mistake in Marvel. They have given D answer, but it should be A. Okay. Okay. Yes. A only, but here in Marvel, it was given D. So they have solved it wrongly. Okay. Now next. Now can you solve this third one? Solve this third question. अच्छा, one boy he is asking me, sir, explain me last step. लास्ट स्टेप पूछा था एक बच्चे ने, चलो लास्ट स्टेप भी बता देता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था आपका? One boy he is asking me last step, so I will again complete this example. तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया था 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equals to mt into x minus x1. So y क्या दिया है आपका? सॉरी, y1 दिया है -4 by e. 0 into something. So x minus x1 is -1. So this is 0. So y plus 4 by e. Is it coming 0? Yes. So if we'll simplify this, then it will be ey plus 4 is equals to 0. If we'll multiply both side by e, if I multiply both side by e, e से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये e हट जाएगा. So y plus ey plus 4 is equals to 0. Understood? Okay. Sir, long press the board, you will get the emojis option. And okay. Okay, thank you. So I think this is clear. Now next. Solve this third one.
Solve this third. Okay, student, they are writing C option. And C is correct. C option is correct. C third one. देखो यहाँ पर पूछा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, मींस पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा टू द कर्व. कर्व दिया यहाँ पर कौन सा फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है, एक्स इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ थीटा, वाई टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, राइट. सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट dx by d theta. It will be derivative of 3 cos theta, that will be minus 3 sin theta. Then dy by d theta, 3 sin theta का डेरिवेटिव 3 cos theta. Then dy by dx, that will be your slope of tangent mt. dy by d theta, that is 3 cos theta upon minus 3 sin theta. 3 get cancelled, so it will be minus cot theta. Okay. Now next, तो slope of tangent आ गया dy by dx at the given point. Okay, this is minus cot theta, but point was not given. So how to find the point? Point P is nothing but x and y. So what is x? 3 cos theta, and y क्या दिया है, 3 sin theta. So this is nothing but your x and y. So I have to find the value 3 cos at what point, pi by 4, and 3 sin pi by 4. Pi by 4 is 1 by root 2. So 3 by root 2 and 3 by root 2. So this is the point, 3 by root 2, 3 by root 2. Now I have to find equation of tangent. Y minus y1 is equals to mt into x minus x1. So y minus y1 is given 3 by root 2. Slope of tangent, slope of tangent at a point pi by 4 minus cot pi by 4. Cot pi by 4 value क्या आएगी? Cot pi by 4 1, right? So it is minus 1. Simplify this. Sir, can we eliminate the parameter theta and then use t is equals to 0? Yes, that also you can do.
Simplify this. Root 2y minus 3 upon root 2 is equals to minus 1 root 2x minus 3 by root 2. दोनों साइड का root 2 get cancelled, so it will be 2y minus 3 is equals to minus root 2, so minus root 2x minus minus plus 3. Okay. No need to put this bracket. So it will be root 2x. Okay, if you'll here again root 2y. Okay. So root 2x plus root 2y minus 6 is equals to 0. But the answer, if we'll simplify, what was the answer? C. So if you'll divide by root 2, then it will be x plus y is equals to 3 root 2. Minus 3 root 2 उधर जाके plus 3 root 2 हो गया. Okay. Dividing by root 2. So equal आंसर कौन से है, equivalent आंसर कौन से है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा. Okay. Now you solve this fourth one. फोर्थ वाला सॉल्व करो. Okay, few students they are writing B option and few students they are writing D. So again solve. Here you have to find the value of A and B. Question once again I'll read. The equation of a tangent to the curve y square is equals to 4x square plus b at point 2, 3 is y is equals to 4x plus 5. Then find the value of A and B. See here. Equation of curve दिया है y square is equals to 4 ax square plus b, right? Okay, the equation of the tangent. Okay, equation of tangent दिया है y is equals to mx 4x plus 5. So what will be the slope of tangent? Y is equals to mx plus c अगर रखते हो तो slope of tangent मिल जाएगा आपका 4. तो slope of tangent 4 है. Slope का इक्वेशन दिया है तो dy by dx अगर आप निकालते हो, dy by dx को 4 से इक्वेट करते हो तो आपको a plus b क्या है, a और b में रिलेशन मिलेगा. ओके
फाइंड आउट। हो गया। फिफ्थ वाला भी स्टूडेंट ने लिखा है आंसर कुछ, ठीक है। फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस फोर्थ वन। सी y square is equals to ax square प्लस b। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, राइट? स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। देन पॉइंट दिया है 2,3। सो 2,3 लाइज ऑन द कर्व। 2,3 इस कर्व पे है ना, क्योंकि वो पॉइंट दिया है उस कर्व पे। सो इफ आई पुट x एंड y इज इक्वल टू 2,3, देन 3 square is equals to a into 2 square plus b. So it will be 9 is equals to 4a plus b. ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। a और b के रिलेशन मिल जाएगा, 9 is equals to 4a plus b. Now next, अभी हमें क्या दिया है? ये क्या है? What is this? This is equation of tangent. So equation of tangent given है, क्या है? y is equals to 4x plus 5. अगर आप इक्वेट करते हो y is equals to mx plus c से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज mt, दैट इज dy by dx। dy by dx क्या आ जाएगा आपका? 4। तो आपको dy by dx मिल गया 4। ओके, नाउ अब क्या करना है? dy by dx अगर 4 है, तो फिर से इस इक्वेशन में इसका dy by dx क्या आता है? देखो, given y square is equals to ax square plus b. So y square का डेरिवेटिव 2y dy by dx is equals to ax square plus b है ये, तो ax square का डेरिवेटिव 2ax plus 0, राइट? नाउ 0 तो कुछ जरूरत नहीं, 2 मैं इधर ही कैंसिल कर सकता हूं। सो dy by dx क्या आएगा मेरा? dy by dx आएगा ax by y। ax by y जो कि dy by dx है और dy by dx 4 है। ax by y को 4 से अगर आप इक्वेट करते हो तो आप एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये dy by dx एट विच पॉइंट? 2,3 एट 2,3। सो ये है 2a by 3 और ये कितना आया है यहां से? 4। तो 6 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 2a। सो 6 इज इक्वल्स टू a। a का वैल्यू 6 आ गया। ये a का वैल्यू आप इधर डाल दो, यहां पर। ओके, सो 9 is equals to 4 into 6
plus b. 9 is equals to 24 plus b. So b is equals to what? 9 minus 24. Okay, so ऑप्शन कितना आएगा? -15 आएगा ना? ठीक है, b. So a कॉमा b आएगा आपका 6 कॉमा -15. 6 कॉमा -15 है d. Okay. I hope you understood this. Now you solve this fifth one. Solve this fifth one. फोर्थ का ए दे रहे हो या फिफ्थ का ए है? फिफ्थ का ए दे रहे हो? फोर्थ का डी ऑप्शन है. फोर्थ का डी करेक्ट था. नाउ सॉल्व दिस फिफ्थ वन. Solve fifth one. देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, राइट, एंड थीटा. व्हाट विल बी द पी ऑफ थीटा? पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो क्या है पी के कोऑर्डिनेट्स. आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा. ये होता है एक्स कॉमा वाई. मिस पी के एक्स कॉमा वाई क्या हो गए पैरामीट्रिक फॉर्म में? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा. ओके, नॉर्मल पूछा है. मीन्स पहले अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा आपको, उसका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, राइट. फिर ये पॉइंट है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर. So student, they have written fifth equation of circle. We can do
it with parametric form. Okay, sir, could you please show previous page? Okay, I want to take screenshot. Okay, I will share all the pages because I have the pages PDF already, which I am sharing. This PDF I will send in your WhatsApp group. Okay. और 2 मिनट दूंगा, 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 2010 में पूछा गया था। Wait, I think screen is not visible. Okay. See, हो गया। देखो, हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? रेडियस कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? नाउ dy बाई dx आएगा आपका माइनस 2x बाय 2y। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x बाय y। ओके, बट हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यहां पर नॉर्मल पे डिस्कशन चल रहा है, राइट? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल mn आ जाएगा -1 अपॉन mt, so it will be y upon x. Now हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा एट विच पॉइंट p पैरामीट्रिक में होता है r cos थीटा r sin थीटा, बट यहां पर भी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x क्या है आपका r cos थीटा और r sin थीटा। इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, y मींस r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r विल गेट कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, राइट? और ये पॉइंट है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। सो y माइनस व्हाट इज y1, r sin थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। पर्पसली मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है, tan थीटा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर tan में नहीं है, sin cos में है। x माइनस r cos थीटा, इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपका ऑप्शन ए मिल जाएगा। सर द पीडीएफ विच यू सेंड वी डोंट रिसीव इन थाने ग्रुप। ओके, सो थाने ग्रुप में जो ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ है या फिर पूरे के पूरे भी है मेरे पास, नियर अबाउट 30-40 पेजेस है, तो वो भी मैं सेंड करूंगा। पहले जो मैंने कल सेंड किए थे 7-8 पेज की पीडीएफ, वो मैं फिर से आपके जो MSc CT ग्रुप है कोऑर्डिनेटर्स, उनके ग्रुप में डालूंगा, तो वो अपने थाने ग्रुप में डाल देंगे।
मैं थाने की जो भी कोऑर्डिनेटर उनको बोल दूंगा। ओके, कल्याण ग्रुप में भी नहीं आया है। ओके, कल्याण ग्रुप में भी मैं डालूंगा। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म ऑल द coordinators to send the formula sheet as well as this PDF. Yesterday's and today's also PDF I will send. Okay, group link. Okay, okay, okay. Then I will inform coordinator also to add me in your particular group. Chembur also. Okay, good. I will do the needful. Okay. Next, I think this point is over. So all questions were important. All questions were asked in previous year question paper of MSTC. If in one boy he was asking me, sir, can you send the show the previous page? Okay, I'll show you previous page. If you want to take screenshot, then you can take screenshot of this page. Okay, Borivali also. Okay, Borivali also I will send. This was the next page. Okay. Next. Now we are going to see the second part of this topic, that is derivative as a rate of measure. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा थियरी में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो, एक रिलेशन दिया है y इज टू f ऑफ x। वेरिएबल x कोई भी चेंज हो रहा है, सपोज दैट एक, मुझे बताइए, एक अगर आप मैंने स्फीयर ले लिया, उसका रेडियस अगर बढ़ रहा है, रेडियस कितना भी बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, 2.5, बट अगर मेरा रेडियस 1 है तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? 4/3 1 इंटू पाई। सो पाई का वैल्यू, सॉरी, जो वॉल्यूम है, रेडियस कितना भी चेंज हो रहा है, 1 1 2 3 4 5, बट जो उसका रेंज है, अगर 1 रख दिया तो आपका वॉल्यूम फिक्स आएगा, कोई तो 1.1 रख दिया तो वॉल्यूम फिक्स आएगा। सो y इज नॉट फ्री टू मूव। ओके, सो डोमेन में क्या आ रहा है आपका, रेडियस, और उधर क्या आ रहा है, सॉरी, सपोज दैट स्क्वायर भी एक फंक्शन ले लिया, 1 2 3 4, यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो 1 2 3 4, अगर आप स्क्वायर भी ले रहे हो, ये तो इजी है आपको, तो 1 4 9 16, राइट? सो ये जो है x कैन टेक एनी वैल्यू, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट टेकिंग एनी वैल्यू, इट इज टेकिंग द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x। सो दैट x पहला जो है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट y जो क्या है, x पे डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? नाउ नेक्स्ट, the variable x changes, the value y changes, the rate at which the change take place is given by its derivative। तो जो भी चेंज हो रहा है y में विथ रिस्पेक्ट टू x, वो डिनोट किया जाता है dy by dx से। सो dy by dx at x is equals to point A is instantaneous rate of change of y with respect to A। नाउ हमें पता है, फिजिक्स में आपने देखे हैं कि हमें बहुत सी जगह पे एक क्वांटिटी वेरी होती है तो दूसरी क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ता है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? सो द इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, s इज इक्वल टू f ऑफ t। ओके, टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस वेरी करता है। नाउ वेलोसिटी क्या है, ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv by dt, which is second derivative of this। Okay,
change in surface area and volume of the solid. So this was the general thing. I want to say you that if x is changing, y is also changing, it is denoted by dy by dx. तो हमें इसमें velocity, acceleration, surface area and volume of a solid shapes के बारे में स्टडी करना है. ओके Now one by one question we will see. The first question. Okay. If a circumference of a circle changes at the rate of 0.2 centimeter per second, circumference change हो रहा है. Circumference of a circle आपको फॉर्मूला पता है 2 pi r, जो कि चेंज हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पर वेरी क्या हो रहा है? सेकेंड मींस टाइम वेरी हो रहा है, राइट? देन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज चेंजिंग एट द रेट. जब रेडियस 8 है तो एरिया उसका किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? देखो एरिया हमें फाइंड आउट करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है? dA by dt. What is given? dc circumference अगर dc by dt is given, okay, हमारे पास फॉर्मूला है circumference of a circle is equals to 2 pi r and area of circle is equals to pi r square. Okay. So I'll give you 2 minutes to solve this question. Option few students they have written C. C is the option. Right, correct option. See, this is a very easy question. Circumference of a circle है 2 pi r and area of circle है pi r square. Okay. Rate of change of circumference with respect to time क्या आ जाएगा? 2 pi r dr by dt, right? जो कि dc by dt कितना दिया है आपको? 0.2. 0.2 is equals to 2 pi r dr by dt. Okay. Now 0.2 upon 2 pi is equals to r dr by dt. So it will be 0.1 by pi is equals to r dr by dt. But r is, so r will not come here. dr by dt is equals to 0.1 by pi. ये r नहीं आएगा. So dr by dt आ जाएगा 0.1 upon pi. Now dA by dt, rate of change of area with respect to time, 2 pi r dr by dt.
Okay. Now 2 pi r dr by dt is given 0.1 by pi. Pi will get cancelled. So 2r into 0.1. So 0.2 r. But at radius 8 centimeter we have to find. So dA by dt when r is equals to 8 is equals to 0.2 into 8, that will be 1.6. So the answer is C option. Okay, now we solve this seventh one. Okay, explain again. देखो बेटा, यहां पर क्या क्या दिया है, इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, C, जो कि होता है 2 पाई r. ये दिया है सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.2. टाइम से चेंज हो रहा है, मींस हमें DC रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कम्फरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैल्यू दी है. ये कितनी है, 0.2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर लिख रहा हूं. DC बाई dt दिया था 0.2, बट C क्या है 2 पाई r, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 पाई r का डेरिवेटिव dr बाई dt. ओके, सो दिस इज 2 पाई dr बाई dt. So 0.2 upon 2 pi is equals to dr by dt. So rate of change of radius with respect to time मिलेगा आपको 0.1 by pi, क्योंकि 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो dr by dt मिल जाएगा मुझे 0.1 by pi. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूं ये. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. its area changing when the radius is 8. So area of a circle हमें पता है pi r square. तो dA by dt क्या आ जाएगा, 2 pi r dr by dt. So 2 pi r dr by dt हम ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि है 0.1 अपॉन पाई. सो ये पाई पाई गेट कैंसल. So 2r into 0.1. So it will be 0.2r. ये क्या है, rate of change of area with respect to time. Rate of change of area with respect to time है ये. But हमें rate of change of area with respect to time at radius कितना है 8, तब हमें find out करना है. Means dA by dt at r is equals to 8 find out करना है. Means 0.2 into 8. That will be 1.6. Okay, I think this now it is clear. Okay, one student he is writing, sir, can we write A is equals to C into 2 by 4 pi? Yes, that also you can do. Okay, that formula also you can do, shortcut also you can do. Okay, now next, solve this seventh one. जिनका हो गया 7th 8th सॉल्व कीजिए. सेवेंथ का डी, 8 का ए. ठीक है, फ्यू स्टूडेंट दे हैव रिटन 7 का डी एंड 8 का ए. देखते हैं. See, 2 minutes I am giving you to solve this 7th, 8th and 9th question.
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेट जो है वो एक्सपांड नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मींस -2 है वो, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो -2 ले लो। इट इज नॉट इंक्रीजिंग एक्सपांडिंग, इट इज नॉट एक्सपांडिंग, इट इज डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग। So ninth solution also they have written few student B, and ninth answer is B also correct. हो गया। See seventh one, सेवेंथ वाला कैसा है देखो, a square plate is contracts at the rate of, हम इस सेवेंथ ही सॉल्व करने, हाँ, at the rate of 2 centimeter square per second. When the side is 16, x is equals to side ले लो चलो, and its perimeter changes. Now see, perimeter of square 4 into x and area of square is x square. Okay, स्क्वायर के लिए एरिया होता है साइड स्क्वायर एंड पेरीमीटर होता है 4 into साइड। अभी हमें क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से एरिया रिड्यूस हो रहा है, राइट?
सो dA by dt दैट वाज गिवन -2, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x dx by dt। ओके, now here 2x dx by dt, so -2 upon 2x is equals to dx by dt, so -1 by x आ गया dx by dt। dx by dt आ जाएगा -1 by x। फिर से बता रहा हूं, देखो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का साइड एरिया होता है साइड स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। हमें दिया है उसका जो एरिया है कॉम्प्रेस हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है 2, बट इट इज रिड्यूसिंग, सो इट इज -2। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx by dt, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। वो आपका नॉर्मल x और y नहीं डेरिवेटिव में, जिसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x आएगा। यहाँ पर x भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो दिस इज 2x dx by dt। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 2 will get cancel, so -1 by x आएगा dx by dt, मींस आपका साइड स्क्वायर का साइड टाइम से चेंज हो रहा है -1 by x, राइट। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into x, सो अगेन dp by चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, 4x dx by dt, so it will be 4x into -1 by x, so x will get cancelled, and ठीक है 4 into x dx by dt, 4 into x dx by dt, तो आपका -1 by x आ गया, राइट। इट्स पेरीमीटर चेंजेस, सो हमें dp by dt फाइंड आउट करना था एट पॉइंट व्हेन साइड x is equals to 16, 4x dx by dt, 4x dx by dt is -1 by x। क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट, 4 into 1 dx by dt, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 आ जाएगा, so it will be -4 by x, so it will be -4 by 16, it will be 0.25। ओके, यहाँ पर 4x dx by dt, 4x का डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा इंटू dx by dt, स्क्वायर था इसलिए 2x dx by dt आ गया था, बट इंडिविजुअल x है तो 1 इंटू dx by dt आ गया। ओके, नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। Understood this question? If you understood 7th, write in a chat box. One point he is telling, sir, x dx नहीं dx by dt है, okay, x dx नहीं dx by dt बराबर है, वो 1 है, इधर एक्चुअली 1 ही किया है, दिस इज 1। नाउ सॉल्व 8th one। देखो ये तो बहुत इजी है, ये क्यूब में क्या हो रहा है, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सपोज दैट एक्स साइड है इसकी, सो हमें दिया है dx by dt, ये कितना दिया है 0.04, दिस इज गिवन, साइड को हमने x लिया है,
Then when side is 6, what is surface area of the cube? Surface area of the cube क्या होता है? Surface area होता है 6 into side square. So ds by dt क्या आ जाएगा? 12x to dx by dt, right? So 12x into dx by dt क्या है? 0.04. Okay, 12x dx by dt, 12x dx by dt. So 12x into 0.04. So it is ds by dt. But at the point side कितना दिया है? 6. So it will be 12 into, ये x की जगह 6 into 0.04. So the answer is what? What is the correct option? D, right? (2.88) A. Now solve ninth one. नाइन्थ का बी देख लो. नाइन्थ का थोड़ा लंबा है, नाइन्थ वाला सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन इज इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग 2 feet per second. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो लिख लो. देन व्हाट इज इफ द रेडियस इज 6 feet, इट्स वॉल्यूम. देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता है 4/3 पाई आर क्यूब. सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? लेट्स सी नाइन्थ वाला. Given that if the surface area of the sphere is increasing at 2 square feet per second, surface area of sphere 4 pi r square, right? And volume of sphere 4/3 pi r cube. Okay, अभी हमें क्या दिया है? ये दिया है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट, मींस ds by dt दिया है, कितना है? 2. So ds by dt is equals to 4 pi r square का डेरिवेटिव 2r dr by dt. So it will be 8 pi r dr by dt. And this ds by dt ये already given है, कितना है? 2. So 2 by 8 pi r, this is 8 number, this is r, into dr by dt. So it will be 1/4 pi r will be your dr by dt. dr by dt की वैल्यू आ गई 1/4 pi r. ये dr by dt यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा? dv by dt. ये हो जाएगा 4/3 पाई का पाई. देन r क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3r square dr by dt. Okay, so dv by dt is equals to 3 get cancel. So 4 pi r square into dr by dt की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो आप. 1/4 pi r.
So it will be 4 get cancel, pi get cancel, r square and r get cancel. So dv by dt will be r only. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है r, और हमें एट पॉइंट कितना दिया है यार, रेडियस कब है 6. सो dr by dt, और सॉरी dv by dt when r is equals to 6 is equals to सिंगल r. अगर r स्क्वायर होगा तो 36 आता, बट सिंगल r है तो 6 ही आएगा. सो dv by dt आएगा आपका 6 क्यूब फीट पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम है वो. ओके अंडरस्टूड, समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी लंबा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. ओके, वन स्टूडेंट ही इज टेलिंग आई हैव नॉट डन. चलो लिख लो, फिर से एक बार बताऊं. देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दो चीजें हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. देन हमें दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मींस ds बाय dt दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड दिया है ना टाइम. तो ds बाय dt क्या आ जाएगा, r वेरी कर रहा है ना, r वेरी कर रहा है किस पे, टाइम पे. सो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है r और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t. अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई इट इज गिवन. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. सो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. सो ds बाय dt आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बाय dt, क्योंकि r डिपेंडेंट है किस पे, t पे. नाउ 2 इज इक्वल टू, ये 4 टू द 8 पाई r इंटू dr बाय dt. सो 2 अपॉन 8 पाई r इज इक्वल टू dr बाय dt. सो 1/4 पाई r इज इक्वल टू dr बाय dt. ये dr बाय dt देखो, हम हमेशा दो चीजें होती है, एक में से dr बाय dt हमें अभी उधर सब्स्टिट्यूट करना है. सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. सो dv बाय dt क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जो कि डिपेंडेंट है t पे, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3r स्क्वायर dr बाय dt लग जाएगा क्योंकि डिपेंडेंट है. नाउ dv बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, 3 गेट कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाय dt. ये जो dr बाय dt यहाँ से वैल्यू है, ये यहाँ से वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 4 पाई r और r स्क्वायर का r कट गया, सिर्फ r बच गया. सो dv बाय dt एट पॉइंट क्या बोला था, r कितना बोला था 6. सो एट 6 इज इक्वल टू, सिंगल r है तो 6, r स्क्वायर होगा तो 36 था. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड. कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r गिवन इन द डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया एंड गेट dr बाय dt? या बट हमेशा यस डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन से कॉमन सेंस से भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज आल्सो देयर. आप आंसर से भी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर सकते हो, दैट इज आल्सो देयर. ओके, आई एम टेलिंग यू मेथड. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व और हाउ कैन इंक्रीज द स्पीड, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th वाला सॉल्व करो. Solve this 10th question.
Yes beta, one boy. MS कौन है? What is your problem? Because let me read your chat. क्योंकि मैं हमेशा चैट नहीं रीड कर रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन होता है मैं रीड करना. ओके सर, कैन वी सब्स्टिट्यूट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस? ओके ठीक है. MS ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? ओके सो आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज देयर. मैं पूरा चैट रीड कर रहा हूँ, आपका चैट बॉक्स. सभी के क्वेश्चन के आंसर्स आई होप मिल गए हैं. 10th के क्वेश्चन के आंसर में बहुत से आपको मिस जम्बलिंग हो रहा है. देखो, कोई स्टूडेंट बी लिख रहे, कोई स्टूडेंट सी लिख रहे, कोई स्टूडेंट बी लिख रहे. सो बी एंड सी यू आर कंफ्यूज्ड. ओके तो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर बी आ रहे हैं. एंड आंसर देखो अभी क्या आएगा. ओके नाउ सी, water is poured into an inverted cone of semi vertical angle 30 degree. देखो एक कोन है, इसमें वाटर पोर किया जाए, पानी भर रहा है, राइट. मुझे बताइए, ये हाइट है और ये रेडियस है, राइट. और एंगल क्या दिया है? 30 डिग्री. सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री मीन्स ये दिया है 30 डिग्री. ओके नाउ और क्या क्या दिया है? द रेट ऑफ पोरिंग इज 2 क्यूब फीट पर मीटर पर मिनट. मीन्स वॉल्यूम दिया है, डीवी बाय डीटी दिया है हमें. डीवी बाय डीटी दिया है 2. ओके और क्या क्या दिया है? हाइट दिया है 1, h इज इक्वल टू 1 दिया है. और जब h इज इक्वल टू 1 पे हमें निकालना है, हमेशा h इज इक्वल टू 1 नहीं है. ओके मुझे बताइए 30 डिग्री दिया है, इससे हम एक r और h में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. tan h या tan 30 क्या आ जाएगा हमें? tan 30 आ जाएगा r बाय h. tan 30 आ जाएगा r बाय h. tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 1 by 2 and 2 by root 3 by 2 is equals to r by h. इससे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू मिल जाएगी 2 by root 3. एक तो r की वैल्यू फाइंड आउट करो, h की वैल्यू फाइंड आउट करो, कोई भी एक की वैल्यू. सपोज दैट मैं अगर r की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, सो r इज इक्वल टू रूट 3 h बाय 2. r मिल जाएगा रूट 3 h बाय 2. 1 by root 3. 1 by root 3. Okay, tan 30 1 by root 3, right. So इससे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा h by root 3. r की वैल्यू मिल जाएगी h by root 3. अभी हमें क्या दिया है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 by 3 pi r square h, राइट. ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन. नाउ dv by dt, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 by 3 pi. ओके वॉल्यूम ऑफ कोन, एनी डाउट? तो इसमें आ जाएगा 2r. अच्छा इसमें रेडियस हमें सब्स्टिट्यूट करना है h by root 3. So I can substitute here only h by root 3
without finding this, first I will express in single term. So pi r की वैल्यू है h by root 3 into h. So it will be pi by 3 h square by root 3. Now dv by dt find out करो, and dv by dt when h is equals to 1, this will be your answer. So इधर स्क्वायर है, so it will be h square into 3. So it will be pi h cube by 9. pi h cube by 9 आएगा आपका v. ये पार्ट फिर से बताऊं मैं? देखो, v is वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर h. सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई. r की वैल्यू अगर उधर से डालूं मैं h by root 3 का स्क्वायर इंटू h. सो इट विल बी 1/3 पाई h स्क्वायर बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू h. सो इट विल बी h क्यूब पाई बाय 9. सो ये हो गया डी v. नाउ dv बाय dt क्या आ जाएगा? 1/9 तो बाहर आ जाएगा. पाई h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर dh बाय dt. dh बाय dt आपको ऑलरेडी दिया है. dh बाय dt क्या है? When the depth of the water of the cone is 1 foot, surface area of the dh by dt क्या दिया है? What is put into the vertical angle at the rate of 2 दिया है. dv by dt ये 2 दिया है. चलो ये 2 दिया है ना? 1/9 सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, you will get the answer. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? राइजिंग मींस dh by dt हमें फाइंड आउट करना है. वाटर कितना हाइट ऊपर जा रहा है मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फाइंड आउट करना है. और आपका dh by dt आ जाएगा 6/पाई. देखो यहाँ पर, यहाँ से ही पता चल जाएगा. ये 3 3 जा 9. सो इट विल बी 1/3 h स्क्वायर इंटू
So 6 is equals to h square dh by dt, राइट. h की वैल्यू 1 दिया है, so dh by dt is equals to 6 upon pi. पाई भी है ना यहाँ पर. So dh by dt will be 6 upon pi. Next, okay, approximation. Time क्या हुआ है 32. Can we extend this lecture till 3:45? 3:45 3:50 तक extend करेंगे. Okay, write in a chat box. Okay, few students they are writing yes sir. Okay, so we will extend this lecture. We will complete this approximation part, and next thing, which is LMVT, Rolle's theorem, increasing decreasing function, maxima and minima. This part we will discuss in next lecture. First we will complete this approximation, but before this I want to tell you that approximation जो है आपका reduced part में है, वो आएगा या नहीं आएगा ये part मैं नहीं कह सकता, but examples मैं ले रहा हूँ. Okay. And in last lecture few students they were telling sir reduced syllabus का PDF send कर दो. Actually अगर आप Google सर्च करोगे तो भी reduced syllabus का PDF मिल जाएगा आपको 12th का. अच्छा 11th का नहीं मिला है, 11th का मैं सेंड कर दूंगा. ओके, कि 12th की तो आपने एग्जाम दिया, देखो बराबर है, क्योंकि 11th का आपका वो टॉपिक नहीं हुआ था बोर्ड में, तो मींस बोर्ड में तो हुआ है बट रिड्यूस पार्ट नहीं हुआ था. सो आई विल सेंड 11th रिड्यूस पार्ट एंड 12th रिड्यूस पार्ट आल्सो along with trigonometry formula. See, approximation, देखो आपको तो ये पता है 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, रूट 4 क्या है 2 है, बट रूट 4.1 क्या है, रूट 4.1 क्या आएगा, ये हमें अप्रोक्सीमेशन बाय यूज ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो. कैन आई राइट दिस एज 4 + 0.1. ओके, सो मेरा फंक्शन हो गया रूट एक्स, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स, 1/2x, राइट. एंड यहां पर अगर मैं ये चीजें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा अंदर बन जाएगा x + a और a + h स्मॉल, अगर h को मैंने कंसिडर किया 0.1, तो मेरा फंक्शन है a + h जो कि रूट 4.1 में a मेरा होगा 4 एंड h होगा 0.1. सो द आंसर इज f ऑफ a + h होता है approximately equals to f of a plus h into f dash of a. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a. एरर्स भी वही है एंड टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर्स का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है del y is equals to f dash of x into del x. टाइप्स ऑफ एरर है रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, वो भी हम देख लेंगे. सी, now this is the main formula. Based upon this I am going to take examples. So can you solve this? First, find the approximate value of cube root of 28. क्यूब रूट ऑफ 27 आपको पता है, बट क्यूब रूट ऑफ 28 क्या है वो आपको उस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है. Solve this question number 11, 12 and 13.
I'll give you 5 minutes for solving this question. आंसर क्या आएगा सर? फॉर्मूला दिखाओ। फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। एंड स्टूडेंट दे आर राइटिंग बी आंसर विच इज करेक्ट। बराबर है। देखो मेरे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो मुझे किस किस चीज की जरूरत है? मुझे ए क्या है, एच क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है। देन एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? तो देखो मुझे 28 में से 28 को मैं 27 प्लस 1 लिख सकता हूं क्योंकि 28 का क्यूब रूट मुझे पता है ना, 3 है। सो आई विल सब्स्टिट्यूट a एज 27 एंड h एज 1। सो मेरा फंक्शन क्या है? f ऑफ x है क्यूब रूट ऑफ x। मेरा फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x आ जाएगा x रेज टू 1/3 है ना, ये तो आ जाएगा 1/3 x रेज टू माइनस 2/3। सो इट विल बी 1/3 x स्क्वायर का थर्ड रूट। ओके, सो f डैश ऑफ x। नाउ मुझे f ऑफ a पहला फाइंड आउट करना है। देखो a इज इक्वल टू 27, h इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 है ना। f ऑफ a क्या है? क्यूब रूट ऑफ x फंक्शन है ना, तो 3 आ जाएगा। देन h इज इक्वल टू तो 1 है, f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 थर्ड रूट और 27 का स्क्वायर, राइट? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय, राइट डाउन और बाद में सिंप्लीफाई करो। अच्छा ये A3 है ना, A3 है ना, A तो 3 आ जाएगा आपका। सॉल्व करो, मैंने हिंट दिया है, सॉल्व करो।
A27 ही है, बराबर। सॉल्व करो। एफ ऑफ ए आ जाएगा 3, एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा 1/3 थर्ड रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, और ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा आपका एफ ऑफ 28 इज इक्वल टू, या फिर थर्ड रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा 3 प्लस 1/27। सो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें से सिंप्लीफाई कर दो। 27 into 3 plus 1 upon 27. So option B. This will be 3.037. आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एटी टू अपॉन 27 को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। Similarly, you take screenshot of this. Actually, this part is omitted from your board syllabus, and the rule is the reduced part they are not going to ask. So approximation पे questions नहीं आने वाले हैं। फिर भी अगर आपको ये questions की स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपके अदर एग्जाम में भी काम आएंगे। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है। देख बेटा, चलो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। सी, फंक्शन दिया है मेरा फंक्शन दिया है क्यूब रूट ऑफ एक्स, जो कि है x टू द पावर 1/3, है ना। तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा मेरा, 1/3 x टू द पावर -2/3, दैट इज 1/3 थर्ड रूट और x का स्क्वायर। ओके, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो 28 को मैंने 27 प्लस 1 लिख दिया, जो कि मेरा a है और ये है h, a और h मिल गया, राइट। अभी मुझे पहले f ऑफ a, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास क्या है, फॉर्मूले में है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। तो मुझे f ऑफ a पहला निकालना है, तो मैं यहां से f ऑफ 27 क्या आ जाएगा मेरा, थर्ड रूट ऑफ 27 जो क्या आ जाएगा 3, तो f ऑफ a मैंने यहां पर रख दिया 3 प्लस h क्या है 1। अभी मुझे सिर्फ f डैश ऑफ a निकालना है, f डैश ऑफ x तो मेरा यहां पर है, तो f डैश ऑफ a क्या आ जाएगा, देखो f डैश ऑफ a मींस f डैश ऑफ 27 क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 डायरेक्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, थर्ड रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, थर्ड रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो 3 थर्ड रूट ऑफ 27 का स्क्वायर कितना है, राइट इन चैट बॉक्स। ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर वहां पर रख दो, उसका क्यूब रूट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करो, 729। 729 का क्यूब रूट 9 आएगा, तो 1/3 इंटू 9 दैट इज 1/27, ये बराबर है अभी। ओके, तो 1/27 तो हो जाएगा 3 प्लस 1/27, जो कि हो जाएगा 81/27। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.037।
नाउ इज इट क्लियर? अभी समझ में आ गया? 82/27, हाँ, क्योंकि ये +1 है ना, सो 82/27 क्लियर? एनी डाउट? सर हाउ टू डू 13th वाला कैसा करना है? देखो हमें sin 31 डिग्री निकालना है ना, तो sin 30 मैं इसे ऐसा कर सकता हूं, sin 30 + 1 डिग्री, तो a बन जाएगा मेरा 1, h बन जाएगा, सॉरी a बन जाएगा 30, h बन जाएगा 1, है ना? a बन जाएगा 30, h बन जाएगा 1, और फंक्शन क्या है मेरा? cos x, f of x है cos x, तो f dash of x क्या आ जाएगा? -sin x, तो f of x, f of a और f dash of a निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. ओके, so I think today we have covered this part. In next lecture we will continue this topic. Okay, so I hope you have understood this part. Thank you. I will end the meeting. And the pending thing 11th का reduced part, trigonometry की trigonometry और पूरे formula sheets जो भी है मैं दे दूंगा. Okay, चलो, thank you. Have a good day. Same to you. Okay, thank you. हाँ, स्क्रीनशॉट जिससे लेना है ले लो, लास्ट पेज का, इसका भी लेना है तो ले लो.